he went into the wall at 30 Gs. कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ. We'll see about that. That is something which Interesting. makes it very unique. भाई F1 फैंस इसको गाली दो. Hey guys, welcome to Atlas podcast. And as you can see, after a very long time, the ex co-owner, if it is right, क्या लगता Who said X? I'm still the owner of Atlas Podcast right? And Private Limited. the co-owner of Atlas podcast, Mr. Saud Hashmi, back after a very long time. And this is a very big video for us क्योंकि ये बहुत टाइम से मैं सोचा था. And after the MotoGP guide, this was the video in the plans and development. So finally we are here, and it is the MotoGP versus F1 debate. And so क्या आपके expectations है इसमें? Oh yes, by the way, F1. नहीं, this is the winner already. All right. This is not. कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ. F1 is the winner. F1 will win every time, everywhere. We'll see about that. So audience से ताकि हम थोड़ा सा जेल हो सके, हमको समझ पाए, we first need to बताना पड़ेगा हमको कि कितना टाइम है. So Saud bhai, I would like to ask you कि आपको F1 में एंटर हुए कितना टाइम हो गया, and what made you enter into it? Like अब आप proper fan of F1. So I started watching F1, I think 2 years or 3 years back. Yeah. मेरे कॉलेज इंडस वर्ल्ड स्कूल, हमारे स्कूल के सीनियर थे पार्थ भालेराव. सो आई मीन वी वर जस्ट टॉकिंग एंड ही यूज्ड टू वॉच F1 एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि बहुत अच्छा है. आई न्यू व्हाट F1 वाज, आई न्यू हु सेबेस्टियन वेटल वाज, मैक्स वर्स्टैपेन, ऑल दीस पीपल. बट देन मैंने देखना स्टार्ट किया एंड नेटफ्लिक्स हैज दिस सीरीज कॉल्ड D2S व्हिच इज नॉट अ डॉक्यू सीरीज, इट्स अ होल एडवेंचर ड्रामा एंड थ्रिलर एंड एवरीथिंग एंड फिक्शन कॉमेडी एवरीथिंग. See, मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब, मैंने इसको डॉक्यूमेंट्री कहा था MotoGP गाइड वीडियो में. डॉक्यूमेंट्री. ओके भाई F1 फैंस इसको गाली दो. MotoGP को गाली दो सेक्शन में. So anyways I started watching and then I got hooked. मतलब I was watching every even I was watching all the FP1s, FP2s, FP3s. अब थोड़ा because I am sensitive on time, I usually see qualifying and the actual race. Sprint के highlights देख लेता हूँ सब. So I guess 2 से 2.5 साल you've been into it. Yes, yes. So अब मैं अपना बता देता हूँ. I started watching MotoGP in 2024. It was in the halfway season, and if I'm not wrong, Mandalika में रेस हो रही थी, if I'm not wrong, and it was basically Jio Cinema पे उस टाइम क्रिकेट आता था, and वो आपके एड्स आते थे, वो typical like watch MotoGP वाले. So एक वो क्यूरियोसिटी, बिकॉज आई सॉ कि आप F1 देख रहे हैं, एंड एज वी नो इंडिया में. और तुमको भी कुछ सुपीरियर स्पोर्ट चाहिए था, क्रिकेट को No, छोड़ के. not superior. क्रिकेट को छोड़ के स्पोर्ट चाहिए था, ये बोलो. It's not superior. Basically, कहानी ऐसी कि I tried to get into F1, and I'll be honest with you. Yeah. It was that कि कहीं ना कहीं 2 रेसेस देखना मुझे लगा कि ये नहीं है. So for an experiment, I tried MotoGP, and when I like मुझे जैसे स्कूटी चलाने में मजा आता है. So I guess there is a love from my side for 2 wheelers. And जब मैंने MotoGP देखा, I thought, you know what, मुझे इसमें इंटरेस्ट है. And when I finished the 2024 season में 2025 में अच्छे से घुस गया था. And from that to covering it, it was good. Got it. So hopefully the audience has got it. And debate start हो रही है. And comment below कि आपको क्या लगता है कौन सा sport better है. So I guess let's get into the debate, Sonia. And the first debate point is basically आपका speed and chill factor. So let's start. Sonia. Defend F1. Oh, you want me to start? Yeah, let's start. Defend कैसे? There is no argument. It's just a topic, right? उस पे discuss करें. हाँ, मैं argument ये पेश कर सकता हूँ क्यों F1 dominate करेगा इस चीज़ में. Okay, let me start. Speed and thrill factor. Okay. So I get it. एक Red Bull का वीडियो मैंने देखा था where I think it was David Coulthard, Red Bull आप कह लो Red Bull legend. अभी कमेंट्री करते. David Coulthard sat in an old RB16 कार आई थिंक जब वेटल के ज़माने की थी, और उसी स्ट्रिप पे एक लंबी सी स्ट्रिप थी, उस पे बाइक भी थी, एक MotoGP की Red Bull की बाइक थी, मैं राइट, वो थी Red Bull की, like हाँ, मतलब basically Red Bull की नहीं हो, Red Bull they are sponsored yeah. Red Bull sponsored थी.
तो रेड बुल ऐसे वीडियोस बनाता है, राइट. एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू जैसे ही ऑन योर मार्क्स एट गो बोला, तो मोटो जी द बाइक, राइट, द सुपर बाइक, इट टुक ऑफ वेरी फास्ट. पिकअप बहुत अच्छा है बाइक्स का. क्यों है उसकी पूरी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझा सकता हूँ, बट कॉमर्स वालों को नहीं समझ आएगा. और ज़्यादातर कॉमर्स वाले ही होंगे शायद कमेंट्स में भी, व्यूअर्स में भी. तो पिकअप में मोटो जीपी इज नो डाउट एकदम से पिकअप होता है. ऑल दी बाइक्स को, एंड हाउ मेनी बाइक्स आर देयर? I would say around like 30. 22, क्योंकि if I'm not wrong 11-12 मतलब टीम 10 कंस्ट्रक्टर होंगे और मतलब टीम में 2. बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स 5 हैं, बट जैसे डुकाटी एक है, एंड डुकाटी हैज गॉट 3 to 4 टीम्स. ओके गॉट इट, ठीक है, got that. तो उसमें तो नो डाउट मोटो जीपी इज देयर, बट इट्स अबाउट स्पीड, परफॉर्मेंस फैक्टर एंड एवरीथिंग. F1 will get there because F1 formula cars are designed to have the high performance factor. Okay, आप किसी भी कंपनी की कार्स लोगे, GT रहती है, GT cars are high performance cars made for sports. Okay, and Formula 1, although इंडियन गवर्नमेंट ने 2013 में Formula 1 को एंटरटेनमेंट करार कर दिया था, जिसकी वजह से बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आखिरी रेस थी 2012 में, आई थिंक एक सर्टन डिसीजन की वजह से F1 इंडिया में कभी लौट नहीं पाया. बट F1 इज नॉट एंटरटेनमेंट. F1 इट इज स्पोर्ट्स, इट इज डेंजरस, इट इज रिस्की, एंड इसी रिस्क में इसका परफॉर्मेंस दिखता है. ओके, सो F1 कार्स गो अप टू लाइक 350-360 किलोमीटर्स पर आवर, स्पेशली DRS में जब होती है, विच इज ड्रैग रिडक्शन सिस्टम फॉर पीपल हु डोंट नो. बट टेल मी वन थिंग, नो MotoGP भी तो स्पीड पे जा सकती है. स्पीड मैंने मना नहीं किया ना, मैंने बोला पिकअप पे जाती है. इनफैक्ट टॉप स्पीड भी शायद F1 कार से ज्यादा तो नहीं होगी. टॉप स्पीड में बोलूंगा, टॉप स्पीड आई गेस F1 की. इंजन्स का डिफरेंस है, स्ट्रोक्स का डिफरेंस है, आप जो फ्यूल टाइप्स यूज कर रहे हो वो डिफरेंट है. मोटो जीपी का फ्यूल आई थिंक रेशियो कुछ 80-20 रहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो पार्ट में मैं थोड़ा सा अभी भी ओके कंफ्यूज रहता हूँ. एंड F1 का भी नए रेगुलेशंस हैं, तो 50-50 होने वाला है. 50 विल बी योर कम्प्लीटली इंजन बेस्ड, आपका पेट्रोल, नॉट पेट्रोल, उनका जो स्पेशल फ्यूल है दैट, एंड 50 वुड बी फ्रॉम द बैटरी इटसेल्फ. तो अब वो भी चेंज होने जा रहा है उसमें, और टॉप स्पीड्स अब पूरा एरोडायनामिक्स फोकस्ड रहेगा. तो F1 इज आल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स. नाउ यू कैन गो. स्पीड एंड सेल फैक्टर की बात करें, बेसिकली सी स्पीड की तो बात कर ली सब मैंने. थ्रिल बेसिकली व्हाई आई फील इज मोर इन MotoGP is because आप ये देख रहे हो कि यू नो ऑब्वियसली F1 हैज दिस ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी. एक वन ऑफ माय फेवरेट टेक्नोलॉजीज बीइंग दैट जो आपका हेड प्रोटेक्ट करता है ड्राइवर्स का. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ हेलो, क्या नाम था? हेलो टेक्नोलॉजी. MotoGP राइडर्स आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, एंड उनके पास उनको बचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज एयरबैग्स, जो कि डिप्लॉय होते हैं. एंड अनदर थिंग इज दैट कि आई मीन यू सीन अ लॉट ऑफ रेसेस, जब आखिरी की लैप चल रहा होता है, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन ना कि अगर जैसे मैक्स वर्स्टैपेन फर्स्ट पे चला है, ही इज गोना, अगर 10 सेकंड का, राइट, स्टैटिस्टिकली. MotoGP में बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं वेयर हल्का सा डिसबैलेंस होने पर भी राइडर हैज क्रैश्ड, एंड दैट राइडर हैड टू बी लाइक फर्स्ट पे चला था, एंड देन ही डिड नॉट फिनिश. थ्रिल फैक्टर में भी नहीं, बट ये थ्रिल आपका ऑडियंस थ्रिल है कि ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से? कुछ ऑडियंस क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको आखिरी लैप तक ये सस्पेंस है कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा, तो दैट कीप्स यू एट द एज. अगर ऑडियंस थ्रिल है देन आई वुड से MotoGP इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज F1. क्योंकि मैं किसी हाईवे पे चले जाऊँ, मैं खड़ा रहूँ, बहुत सारी सुपर बाइक्स होके चली आएंगी, राइट, एकदम बहुत तेज जाती है, बट यू डोंट सी एन F1 कार ऑन द हाईवे. यार दिस इज सर्किट में नो दिस इज वेरी, मैं एक चीज कहूंगा बिकॉज़ आई न्यू आप ये कहेंगे, एंड दैट्स व्हाई आई केम प्रिपेयर्ड. F1 कार बिल्कुल आपको कार्स, नॉर्मल कार्स देखेंगे, सी F1 का जो मॉडल है वो कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फॉर्मूला. आई नो, एंड MotoGP के भी मॉडल्स आपको कहीं नहीं दिखेंगे. आई नो डिजाइन इज सेम. इज द इंजन सेम? इंजन, क्योंकि मुझे जो आवाज आती है वो डिजाइन की नहीं आती, इंजन की आवाज आती है. सी इंजन का दैट इज ओके, ठीक है. इंजन हाउ इज इट ओके? नहीं ना, सी इट्स पूरा आप सुनो ना. बेसिकली तुमको जो एक फॉर एग्जांपल हायाबुसा, राइट, या फिर कावासाकी निंजा, आई डोंट नो अबाउट बाइक्स, बट जो इंजन आपका इन बाइक्स में लग रहा है वही सेम इंजन क्या है MotoGP का उसमें लगता है? आई थिंक इट इज मोर एडवांस्ड.
आई विल से, और उसमें अदर कंपोनेंट्स है, ठीक है। हम टेक को बाद में करेंगे कवर, आई डोंट थिंक हमने टेक Okay, को इसमें sure. कर लिया है. आगे बढ़ते हैं. So yeah, these are points. Next is skill and physical challenge. I'm going first. Without a doubt, it has to be MotoGP. क्योंकि see, I will say, I'm not saying कि F1 challenging नहीं है. Both sports have their challenges, but F1 पे आप एक सीट पे बेसिकली स्टीयरिंग व्हील है, एंड आपको हाथ से स्टीयर करना है. देयर आर अदर थिंग्स, ठीक है, जैसे लाइक DRS एक्टिवेशन के लिए देयर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पैर से आप एक्सीलरेट करो, ब्रेक लगा लो. MotoGP में आपको अपनी पूरी बॉडी यूज करनी पड़ रही है टू बेसिकली स्टीयर द बाइक, एंड दैट टू एट स्पीड्स ऑफ 200 किलोमीटर्स पर आवर, राइट. इसके अलावा वीडियोस बहुत सारे देखे हैं जहाँ पर MotoGP राइडर्स के जो एल्बोज हैं, जो घुटने हैं, वो लिटरली Torn हो टच जाते कर हैं. रहे हैं, Oh, touch कर रहे हैं. टच कर रहे हैं. That's why they have the suits. दैट इज प्रोटेक्शन है वो, बट स्टिल आई वुड से इसलिए वो ज्यादा फिजिकली चैलेंजिंग Okay, got that. बस. है. या Okay. अगर कुछ काउंटर आर्गुमेंट होगा तो कर देंगे. नहीं, counter arguments को last तक रखते हैं. we'll see. Maybe next video. We'll see. Comment section. So skill and physical challenge. I have total respect for MotoGP drivers. इतना आसान नहीं होता 200 किलोमीटर आवर्स की स्पीड पे पूरी बॉडी को मूव करना. राइडर्स. राइडर्स. ओके, राइडर्स. तो F1 का is a bit different. अच्छा, how much G forces does a MotoGP rider face when he's I'm not- maybe turning at an angle, और जब वो उसकी बाइक आई डोंट नो ठुकती नहीं है, वो तो स्लिप होके थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, राइट? ठुके- आई मीन डायरेक्ट ठुके आपने क्या अगर फोर्स से? फोर्स से बेसिकली मतलब आई डोंट सो if राइडर knows कि बहुत तेजी से जा रहा है और उसका ठुकना जायज है, he can just let go of his bike, थोड़ा रोल करेगा ऑब्वियसली. और इम्पैक्ट को तोड़ देगा. कैन एन F1 ड्राइवर डू दैट? नो, वो तो अटैच द सीट बेल्ट पहना हुआ है, ही इज इनसाइड द कॉकपिट, दैट and yes, it's a cockpit, not a driver's seat. F1 cars are actually fighter jets. They are planes on land. तो जो F1 ड्राइवर है हमारा, he is sitting inside the cockpit. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कार्लोस साइंज, रशिया, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं, रशियन जीपी में he was about to take a U-turn basically, okay, and his brakes failed, understeer किया थोड़ा, his brakes jammed, and at the speed of I think 240-50 kilometers per hour, maybe less, I might be wrong, but he could not stop the impact. He went into the wall at 30 Gs. 30 G forces कितने होते हैं? पता है कितना होता है? दैट इज अ लॉट. जिस अगर किसी ने वो देखी है टॉप गन, राइट, टॉप गन सीरीज टॉम क्रूज की, तो यू नो व्हेन अ फाइटर जेट डज द बैरल रोल या फिर वो एक पूरा उसे लाता है, तो दैट इज आई थिंक ओनली 15 और 20 Gs. 30 Gs क्या होता है? सब बाहर आ जाता है. इन कार्लोस साइंस का एक्सपीरियंस भी था, ही ब्लैक्ड आउट फॉर अ व्हाइल, ही थॉट मरने ही वाला है. सो फिजिकल चैलेंजेस बॉडी पे वेयर जो रहता है. एंड सेकंड, F1 ड्राइवर्स का बहुत पॉपुलर एक है, उनकी नेक एक्सरसाइजेस देखी होंगी जो अभी F1 मूवी में भी ब्रैड पिट ने की थी, गले वाली. सो दे हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नेक मसल्स, दे हैव टू हैव वेरी गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन. प्लस इट्स नॉट अबाउट फिजिकल, इट्स अबाउट मेंटल चैलेंजेस. आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, MotoGP राइडर्स का कांस्टेंट मूवमेंट होता रहता है, राइट? दे नो अब मूव करना, दे आर ट्रेन्ड ऑन दैट फैक्ट. तो इट्स लाइक अ यू नो वायलिन थिंग, मतलब इट्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ओपेरा, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है. F1 इज मोर लाइक जैज. एकदम से कभी ये हो जाएगा, कभी एकदम से ऊपर नोट्स गिर जाएंगे, ओके. So, but क्यों The driver has to, मैं- because the driver has to react not spontaneously but in the moment, okay. और प्लस रेडियो, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी, रेस स्ट्रैटेजी है, टायर के ड्रैग्स को टायर We'll वेयर come को to that as देखना, well, yeah, we'll come to that as और भी सिनेरियो होते हैं. बट But skill isn't just your see, single thing, it's orchestration. I agree on that, but आप ऐसा कह रहे हैं कि बेसिकली you're saying कि ये सब F1 ड्राइवर्स है. No, मैंने ऐसा नहीं बोला. MotoGP राइडर्स to feel the G-force, ठीक है. 30 Oh, Gs. I would say it could be close to that. I'm not exactly sure. The physics is against you. Okay. 30 G तब हो रहा है See, जब I'm एकदम से भाई See, I'm not a science student, so आप तो समझ. momentum, right? Moment of inertia. So, but that is
दैट इज ओके, आई एग्री, कार्लोस साइंस का जो आपने बात किया, बट अगर हम डेंजर की बात करें, आई मीन यू इट्स नॉट योर सेकंड पॉइंटर, आगे बढ़ सकते हैं, स्किल की बात है, डेंजर की बात तो नहीं देयर इज स्किल रिक्वायर्ड इन, आई मीन आप सी आई डोंट नो आपने है। डेंजर इज अ डिफरेंट पॉइंट, डेंजर में तो MotoGP विंस, ऑब्वियसली देयर इज नो हेलो, ऑब्वियसली बट दैट्स नॉट द पॉइंट, आप आगे बढ़ो। okay, so yeah, I guess let's move on to the next point, which is the race strategy and intelligence. And one thing which puts F1, मतलब इसमें contradictory points है, but F1 में you'll see pit stops. This is something जो MotoGP में बिल्कुल नहीं होता है. The only scenario where you see them like going into the pit stop technically is उसमें उनको टायर भी उनको पूरी बाइक चेंज करनी पड़ती है, एंड दैट इज ओनली कि उसमें हंसने वाली बात सॉरी कुछ और, जब बेसिकली व्हेन यू आर ऑन सॉफ्ट टायर्स, पीछे का आपका जो टायर दैट कुड बी ऑन हार्ड या मीडियम टायर्स पे, एंड जब वेदर कंडीशंस के वजह से ट्रैक गीला हो जाए तो दे हैव टू, अच्छा ये नहीं पता था मुझे, MotoGP के फ्रंट और रेयर व्हील्स yeah, टायर्स अलग हो सकते yeah, हैं, they are different. That is something which makes it very unique. So this is where, क्योंकि if you followed the 2025 MotoGP season, it was the race where Marc Marquez won the championship. शायद ऑस्ट्रेलिया में था, I'm not exactly sure, but if I'm not wrong, it was Joan Mir, and वो दिख रहा था बंदा, he was struggling क्योंकि उसका इंजन से धुआं आ रहा था, and his tires were worsening by every lap. तो उसमें MotoGP राइडर्स को वो मैनेज करना पड़ता है. सेकंड, कम्युनिकेशन का सवाल होता ही नहीं रेडियो के थ्रू MotoGP में, इट इज एब्सोल्युटली टफ, एंड उसमें दे कम्युनिकेट थ्रू बेसिकली जहाँ पे उनके टीममेट्स जो हैं ऐसे बोर्ड्स खड़े रखते हैं, सो उस हिसाब से उनको ये मैनेज करना पड़ता है. ओके, व्हाट डू यू लाइक टू रेस स्ट्रेटजी एंड इंटेलिजेंस. ओके, मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट इस बुनियाद पे नहीं कि क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि दोनों रेसेस अगर देखी जाए, मोटो स्पोर्ट मोर और लेस बहुत सिमिलर होता है, प्रोफाइल्स में डिफरेंस होता है बस. ओके, आई विल नॉट गो विद दैट, एंड पूरी इंजीनियरिंग के मामले में एक अलग वीडियो हो सकता है, बट हम भाई को कुछ समझ नहीं आएगा. सो if you want if you have questions I can definitely help, but for F1 my single point is you have a simple system. Okay, 2 tires, मैं अभी सिर्फ फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ. एक सिंगल बॉडी है जो कि पूरी स्वर्व होती है, एंड उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वो फाइट करती है, राइट, गोइंग अगेंस्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हिच अगेन मेक्स इट डेंजरस, लेस स्टेबल, आई वुड से. सिंपल सिस्टम राइट. और इंजन्स 2 टाइप के होते हैं, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन. MotoGP कैन यू कंफर्म 2 स्ट्रोक होता है क्या? कितने सीसी का रहता है वैसे? 2 स्ट्रोक ही होते हैं टिपिकल मोटरसाइकिल इंजन. आई थिंक 2 स्ट्रोक. So F1 cars use अभी right now use the V6 engine, 4 stroke engines. Okay, engine complexity है. उसके बाद 2 तरीके की यूनिट्स होते हैं, MGU and MKU, I believe, right? If I'm not blanking on the term. एक इलेक्ट्रिक यूनिट होता है, एक किनेटिक यूनिट होता है. 2 यूनिट्स अलग, ओके, एक दूसरे के साथ ऑर्केस्ट्रेट करके पावर देते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं पूरे, फ्यूल रेशियोज अलग होते हैं. ओके, एक्सक्यूज मी. उसके बाद पूरी कार का जो सिस्टम है, राइट, हाउ इट बैलेंसेस द फ्यूल, एरोडायनामिक्स कैसे काम करते हैं. MotoGP देयर इज नो एरोडायनामिक्स एक्सेप्ट द फ्रंट, नहीं, देयर इज नो डायनामिक एरोडायनामिक्स. इज देयर? विंग्स होते हैं, जो होते हैं, नहीं, जो मूव करते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं. आई मीन दे वर्किंग ऑन वर्किंग ऑन इट अलग है. ओके, यार नहीं, सी लिसन नहीं, अभी कार और बाइक्स के बहुत अलग वो रहते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसलिए रेस स्ट्रैटेजी तो मैंने कवर की नहीं है, इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जस्ट ऑन योर पॉइंट, राइट. तो द F1 कार इज मोर कॉम्प्लेक्स बाय डेफिनेशन, इट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट. Complexity means there is more intelligence to it, there are more strategies to it. So MotoGP में भी I believe strategies होती हैं, right? कि अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, अगर इस ड्राइवर ने इसको ओवरटेक कर लिया, या कुछ व्हील्स टायर्स फेल हो गए. टेल मी, F1 में लाइक मिरर्स रहते हैं ना जहाँ पे आप पीछे ऑफ कोर्स, MotoGP में नहीं रहता है. सो द ओनली वे दे नो कि कोई राइडर उनसे कितना पीछे है, वो पीछे इज व्हेन जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं
उनके टीममेट्स बेसिकली बोर्ड्स या जो कि हर मोटर स्पोर्ट में होता है, या सो मोटर और यही तरीका है। आई नो दैट। यस, तो खैर वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वाला रहता है कि कौन किसके आगे कौन किसके पीछे, बट द पॉइंट इज complexity is more with F1 cars. Okay, they are more complex to deal with. Strategies भी इतनी आसान नहीं होती हर रेस की स्ट्रैटेजी में। दोनों टीममेट्स का, खैर इसमें भी टीममेट्स होते हैं, बट दोनों आपके रेसर्स का देखा जाता है, दोनों की कार के सेटअप्स को देखा जाता है। सेटअप्स अलग होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन इफ यू प्ले F1 गेम्स राइट, आप उसमें ब्रेक बायस बदल सकते हो, उसमें आपकी कार की ट्यूनिंग बदल सकते हो, एंड इट्स नॉट 2 degrees, it's not 1 degree of, or rather 2 degrees of freedom जो कि MotoGP में होता है। F1 has 3 degrees of freedom, right? It's a combination of the 4 tires. 2 tires go the same way, ऐसा तो नहीं ना कि एक लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट जाएगा, राइट? अंडर ब्रेकिंग, ओवर ब्रेकिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ट्रैक मुझे आई डोंट नो, टायर वेयर का नहीं पता, MotoGP में होता है और बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल फिजिक्स, और ऑब्वियसली ओवरहीटिंग, राइट? एनीवेज, ऑन द more information part and more strategizing part, F1 is definitely the stronger picture, right? It's in the stronger parts of it. Yeah. Okay. So the fourth point जो कि सबसे बड़ी weakness है मेरी, that being the technology and engineering, I'll let you handle this one पहले. Okay. And we discussed a lot in the first point only, but I would like to ask you कि like what are the best technologies to ever, in your opinion, to exist in F1? Formula 1. DRS, does it come? सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, इसमें भी डिस्प्यूट है क्योंकि कई टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स हैं। See, the reason Formula 1 is because of the technological innovation. मुझे MotoGP की हिस्ट्री नहीं पता, मुझे और भी किसी मोटर स्पोर्ट की हिस्ट्री इतनी नहीं पता जितनी Formula 1 की पता है। और Formula 1 का सोल रीजन ये है कि उन्होंने R&D, इनोवेशन, इंजीनियरिंग पे शुरू से एफर्ट्स डाले। Formula 1 का सिंपल गेम है, मैनेजमेंट कितना भी बकवास हो, मतलब वो भी जरूरी है, कितनी भी बकवास ड्राइवर हो, अगेन वो भी जरूरी है, बट इफ यू हैव अ फास्ट कार देन यू विन। मैक्लेरन मॉडल, राइट? मैक्लेरन 2 साल से मैक्लेरन का यही मॉडल रहा है, मेक द फास्टेस्ट डैम कार देयर इज, But tell me one thing. engineer the best car, have good drivers, have the best drivers as well. Doesn't it work in MotoGP as well? I mean, अगर if you don't know, there's this. काम करता है बाबा. My point. Let me finish my point. ये बात My is- point is sorry, engineering. You asked me a question. What were? अच्छा, the I'm sorry. milestones? Yeah, I apologize on my. DRS milestone है, okay. आपका जो मोटर यूनिट्स बदले हैं पूरा, वो इट्स अ माइलस्टोन। डिफ्यूजर, एक डबल डिफ्यूजर आया था, दैट्स अ माइलस्टोन, जो कि ब्रॉन जीपी ने इंट्रोड्यूस किया था। देन आई मीन हेलो was not a milestone, I would say, but in terms of safety of drivers, Halo was game changing. Look, I will say, not being an F1 fan, but I have studied a little about it. Halo has to be my favorite technology. I mean, for me, it is not a because I am a technology. MotoGP fan. I am someone who sees a lot of accidents. So that is something. Now, जहाँ पे मैंने आपको disturb किया, I'm sorry for that. Isn't that the point to make your basically अगर बाइक या कार to make it the fastest on the track? MotoGP में भी ये होना चाहिए. So as I told you, right, it's a simpler system of parts जहाँ पे innovation आप, I mean, come to think of it, innovation आप engine में कर सकते हो और wing design में. इसके अलावा मुझे फिलहाल टायर टेक्नोलॉजी में शायद कुछ इनोवेशन हो सकता है, probably, I don't know, but उसमें भी दोनों स्पोर्ट्स में लिमिट्स भी रहती हैं. I don't know. See, thing is, simpler system will have 1,000 parts. Complex system will have 10,000 parts. 1,000 और 10,000 में फासले का फर्क है, बड़े जीरो का फर्क है, एंड ये बड़े जीरो के फर्क में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फर्क है, और इसी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फर्क में इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी और इंजीनियरिंग इनोवेशन का फर्क है. So anyways, coming to a point, excellence is with F1. The reason, at least in this point, it is the number 1 contender. कोई भी मोटर स्पोर्ट देख लो, तुम्हारे व्हाट्स दैट फॉर्मूला ई की भी बात कर लो, वो भी, आई मीन, इट्स जस्ट एन एफर्ट टू मेक एवरीथिंग इलेक्ट्रिक, और अभी 2026 के रेगुलेशंस में भी यही हुआ है, और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के टुवर्ड्स जा रहे हैं, बट इट्स अबाउट इंजीनियरिंग, राइट, वेयर F1 स्टैंड्स. Look, I'll agree to this. F1 technology has made what F1 is right now, and is very important. What I will say is कि मैं टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं जानता हूँ. There have been
very good advancement in technology. Basically, if you know what a gearbox is, obviously, जाहिर सी बात है. But that is a very game changing technology in terms of obviously all sports. I think there is, क्योंकि मैं ये argument दूंगा, there is a more human to machine connection in MotoGP. That is something which is in F1 as well. कैसे? Like in the sense कि भाई any motorsport, I know motorsport छोड़ो ना, any automobile will have a human to machine connection. I know. A human designs the engine, हाथ से बनाता है. But tell me one thing, क्या ये टेक्नोलॉजी का लेना देना लिबर्टी मीडिया से कुछ है या बिल्कुल नहीं? Liberty Media is a different thing. You're confused. हाँ, मैं कहाँ जा रहा था? Engineering is with the makers of the engine. जैसे Ford है, Honda है, Ferrari है. Okay, these are makers. Mercedes है. These are makers of engines, and the whole body is and everything in it is constructed by the constructor. इसलिए उनको constructors बोलते हैं. जो teams होती हैं, इनकी पूरी engineering teams होती है खुद की. Aerodynamics department अलग होता है, design अलग होता है. You get the point. तो yeah. Okay, next पे चलते हैं, which is fan culture and entertainment value. See, I don't want to argue on that because F1 is the leading motorsport in उसका the reason world. reason तो discuss कर. What do you think are the reasons? क्यों F1 I would इतना say, popular है? and ये मैंने अपने और इंडियन ऑडियंस को कवर अप करिएगा फिलहाल. दैट इज अ स्पेशल पॉइंट जो एंड में हम करेंगे डिस्कस. आई वुड से लिबर्टी मीडिया का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है. आज जिस पोजीशन पे F1 है, where they got their popularity from the Drive to Survive series on Netflix, और अभी F1 की मूवी आने से भी और पॉपुलैरिटी बढ़ गई है. डेफिनेटली. एंड एड टू दैट फैक्ट कि जब हम छोटे बच्चे थे एंड हमको F1 के बारे में जर्रा वर्ड भी नहीं मानता, we knew drivers like Michael Schumacher, we knew drivers like Sebastian Vettel. MotoGP में सिर्फ एक नाम आता है and that is Valentino Rossi. जब That's all I know. that is all we knew, क्योंकि that is a big problem and इसका बहुत अच्छा आर्गुमेंट है मेरे पास. Audience मेरे wise, पास भी तुम पहले करो. audience wise, see, look, brand wise, no one is overtaking F1 for the next 10 or 20 years or so something. Audience की बात करें, I feel वो होता है ना जैसे दाल में कुछ काला है. There is that section जो so called fans होते हैं, because this is something which I have noticed personally. I have gone to cafes, I have gone to, मैंने अपने कॉलेज में ये चीज नोटिस किया. This is something which will not see in MotoGP. There are a lot of so called fans जो सिर्फ like they'll be like do and they'll do that to maybe impress someone. Mostly girls. Yeah. मैं एक स्क्रीनिंग में गया था, एक लड़की बीच में से शुरू हो गई do Max Verstappen. So that is, I don't think so. That only, It's called meme culture. it's meme. that is okay. लेकिन for me being a sports fan, जब आपको किसी sports के बारे में, it is okay. You can tell to someone कि मैं घुस रहा हूँ sport में. You give me some time और फिर मैं इसको अच्छे से समझूंगा. You are being so called fans just to get attention, just to you know. तो हर स्पोर्ट में था. NBA के साथ भी कुछ साल पहले यही हुआ था. Yeah, एकदम से because हाइप बढ़ा था. I know that. स्पॉन्सर्स थे और फिर वो डाइड डाउन. एनीवेज, मेरा जो आर्गुमेंट था, why MotoGP is not able to garner attention in the media sector. But, yeah, sorry for disrupting you. Interrupting you. Interrupting you. I'm sorry for that, disrupting बोलिए. I have hopes for MotoGP because Liberty Media just acquired Dorna Sports and Dorna Sports are the organizers of your MotoGP. And कहीं सुनने में आया था, if I'm not wrong, that Disney wants to acquire F1. Disney has already acquired F1. पीछे डील होती Have they? मैं पॉइंट पे हूँ मेरा. Yeah. पॉइंट इज मीडिया इसमें MotoGP इसलिए इतना नहीं कर पाया क्योंकि MotoGP बहुत सालों से सैचुरेशन ऑफ इटालियन राइडर्स है. इटली में ज़्यादा स्पोर्ट चलता है. इटली में तो खैर इटली हैज़ बाय द वे 2 religions, आई थिंक ऐसा कुछ जोक चलता है. इटली हैज़ 2 religions. One is of course your Christianity, second is Ferrari. ऐसा कुछ जोक था D2S में. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट. राइट. सो शार्ल लेक्लर्क का ऐसा जीसस वाला एक वो बना हुआ है. Ferrari, Italians worship racing. They created the art of racing. They invented the art literally. Ferrari, Pagani, Lamborghini, Ducati,
then you have I think did I say Pagani? I said Pagani, I think. I think तो ये सारी कंपनीज, अल्फा रोमियो इज आल्सो इटालियन आई थिंक, यस I think अल्फा so. रोमियो इज इटालियन, सब इटालियन है. They are the creator of these races. Although F1, ironically, is not a creation of Italians, it's a creation of the Britishers. So वहाँ पहले ब्रिटिश सैचुरेशन था, बट F1 में ये हुआ कि the whole world was watching, बड़ा एक्सपोर्ट बना, यूरोपियन से स्टार्ट हुआ, then a lot of other countries joined, especially those people who defined an identity in F1 despite their nationality. Ayrton Senna, Brazilian, पूरा साउथ अमेरिका F1 देखने लग गया. It was Brazil became known for football and F1, not just football and F1. और ऐसे ही धीरे धीरे अब इंडियन ड्राइवर्स भी आ रहे हैं. अब ऑब्वियसली इंडियन ड्राइवर्स आएंगे तो इंडियन फैंस तो पागल हो जाते हैं. ओ माय गॉड, अरविंद करके एक बंदा आ रहा है, कुश मैनी करके बंदा, अरे इंडियन भाई, फुल सपोर्ट. कोई भी स्पोर्ट तो देश आगे रहेगा, सो वो भी सपोर्ट मिलता है. अब कल को कोई मोटो जीपी में इंडियन ड्राइवर आता है, everyone would be happy, right? An Indian rider in MotoGP. देखते हैं, let's see. See, that is the point which I'll cover obviously. So I'll just say अभी F1 को कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है, but I have hopes कि लिबर्टी मीडिया के आने से they do something MotoGP की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए. एंड या इटालियंस, अगर आप करंट रोस्टर भी देखोगे MotoGP का, इटालियंस और स्पेनिश राइडर्स से स्पेन भरा हुआ है, वो 90% राइडर्स उधर के हैं. सो या लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेगेसी एंड इम्पैक्ट. ये थोड़ा दिस इज द लिटिल, क्योंकि MotoGP हैज हैड इट मोमेंट. होगा, हिस्ट्री दोनों में है, हिस्ट्री दोनों की रिस्पेक्टेड है, दोनों के लोग रिस्पेक्टेड हैं जिन लोगों ने इस स्पोर्ट को आज यहाँ तक पहुँचाया. बट impact is meaning you're inspiring people, you are setting a way of you're setting a way for your sport. उसमें F1 is definitely more. एक तो पहली चीज़ कवरेज नहीं मिला इतना MotoGP को, तो वो इम्पैक्ट शायद दिखा नहीं, या वो इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड में दिख नहीं पाया, एस्टैब्लिश नहीं हो पाया. F1 has a legacy of drivers, and as you rightly said, सबको F1 में 2-3 नाम पता ही थे, right? But F1 is a legacy because I mean there are many elements to it. So compared, अगर मैं globally बात करूँ, compared to bikes, cars are definitely more where people are interested in. Most of the world, India को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, जो rest of the world है वो cars ही चलाती है. मुझे कितने भी तुमने अमेरिकन सिटकॉम्स और ये शोज देखे हैं, हमको बाइक्स ज़्यादा दिखती हैं कि कार्स दिखती हैं. कार्स 90% वुड बी कार्स. 10% जो बच रहा है वो बाइकर्स भी वैसे बाइकर्स होते हैं, या तो इट्स अ टू व्हीलर वेस्पा का गैंग जैसे होती है. आई मीन अब वो GTA 5, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ रेफरेंसेस टू इट. बाइकर्स गैंग्स होती हैं, हार्लीज होती हैं, राइट? तो एक तो वो चीज़ है, एंड सेकंड इज F1 इज ब्रिटिश, राइट? सो ब्रिटिश मींस इट्स रॉयल क्लास है, सो उस पे एक वो एक्स्ट्रा ठप्पा और लग जाता है कि इट्स क्लासी, राइट? MotoGP would be, we are Italians, we are very fast. This is so stereotypical. नहीं तो I don't know, MotoGP को कोई ऐसे बोलता है कि F1 no, it's British royalty. सब गेम चेंजर रेसर्स थे इसमें, राइट? एंड Ferrari, okay, Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull, people can name so many constructors. Yeah, I mean अगर मैं सिर्फ Red Bull बता सकता हूँ MotoGP में, और Ferrari I think. See, this is I think where I messed up. क्योंकि if I'm not wrong, Red Bull is not a sponsor in MotoGP, if I'm not wrong. I have to check, क्योंकि मेरा अभी brain fog हो गया था starting में, but I just realized that in middle of the video, and I don't think so. But look, wait. Stopping you right there, I was just checking Red Bull's. So I think it is officially launched. Oh, Red Bull, the Ducati Racing celebrates official team launch. Yeah. जो कि 4 मिनट पहले की खबर है. What? what a timing! बाप रे. I mean, मतलब they are what? finally into. Yes. So that is a very very big news, and what a coincidence, yaar. This Red Bull KTM factory racing. But I was coming to my point basically. check करता हूँ. While he's researching about it, मैं ये कहूँगा कि अगर मैं I'll go outside, मैं लोगों से पूछूंगा आपको फरारी, मैंने दिल से yes,
I'll say आपको McLaren मालूम है, some will say yes. अगर मैं बाहर जाऊंगा and मैं कहूंगा कि डुकाटी मालूम है, some are going to say yes. मैं कहूंगा Everybody do knows you know Ducati. Aprilia? वो कहेंगे हम फर्स्ट टाइम, ये क्या है Aprilia, what is it, what is track house? So this is obviously, yes, cars की popularity obviously ज़्यादा है. Okay. Got it. So Red Bull has teams in Moto2 and Moto3. Okay. KTM के साथ ही जुड़ी हुई See, है. Moto2 Moto3 मैंने Okay, wanted even to, I am not much with F2 F3. Anyways, let's move on. okay, so coming to our final point and my favorite point, that is future popularity and Indian audience connection. I would like to give you the chance to start with this. Okay. See, I know there is, to some extent, there is good popularity in India regarding F1. No doubt. Meme culture has to be the one responsible for that one thing. क्यों F1 popularize हुआ है? And that to be fair, F1 movie है, F1 के games हैं, memes है, Max Verstappen वगैरह वगैरह, right? But most importantly, F1 has a connection with India. 2011, 2012, as I said, Sebastian Vettel both years winning, taking his Red Bull across the finish line and winning the race at the Budh International Circuit in Delhi. Okay, and then what I said, right? Government ने फिर उसको entertainment बोला, not a sport, और उस पे extra tax लगाने का बोला, और F1 ने खुद बोला कि तुम भाड़ में जाओ, हम लोग तुम्हारे अरेस्ट करेंगे नहीं. And F1 fans को हो गए मतलब 13-14 साल सोचते कब इंडिया में रेस होगी. ऑल्दो फ्यूचर उसकी मैं बात करूं, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है, वहाँ पे एक सर्किट प्लान है. बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को पूरा फ्रॉम द बॉटम अप योगी जी ने आई थिंक कुछ प्रॉमिस किया है पब्लिक को कि करेंगे. हैदराबाद में भी एक सर्किट है जो फॉर्मूला ई यूज़ करता है. आई डोंट थिंक सो वो F1 के लिए यूज़ होगा प्रोबेबली एज अ सर्किट, तो मे बी नॉट, बट स्टिल अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस इंडिया में हैं. प्रोबेबली F1 माइट नॉट रिटर्न एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 5 years. देयर इज नो सेइंग, हो सकता है अच्छा डेवलपमेंट हो जाए. ऑल्दो दे हैव अ मार्केट, दे ऑलरेडी नो कि F1 इंडिया में पेस पकड़ लिया है. पीपल हैव स्टार्टेड टू यू नो, स्पेशली द यंगस्टर्स हैव, और जेन जी भी बोलो और हमारे वाले भी, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को लेके बहुत इन्फ्लुएंस भी है, राइट? अमेरिकन फुटबॉल अभी एकदम से ग्रोथ पकड़ा है इंडिया में. NFL F1 जितना तो नहीं, बट इधर के गिने चुने कोनों से लोग भी अब अमेरिकन फुटबॉल NFL देखने लगे. I mean, हमारा ही वीडियो 1000 व्यूज हिट कर चुका है, so hey. So that's one thing. And Indian audience connection, but MotoGP probably यहाँ पे ले जाएगा क्योंकि लोंडो को बाइक, लोंडो की मोहब्बत बाइक से ज्यादा होती है. सस्ती होती है, खुद की होती है, सिर्फ वही चलाता है और भगाता है, उसी पे लड़कियां छेड़ता है, उसी पे अपने दोस्तों के साथ जाता है. No, see, this is a point which I knew you would obviously come to. आप you're comparing street level behavior to a professional racing. अरे मजाक में बोला भाई. ऐसा थोड़ी ना वही थार वाले जो कर रहे हैं वो मैं कहूंगा कि F1 वाले, it's different. स्पोर्ट्स बाइक है ना MotoGP. It is a completely different bike to your स्पोर्ट्स बाइक नहीं है. It is, see, स्पोर्ट्स बाइक है कि नहीं है, सर? the closest, पूरा सुनेगा, the closest which you get to a normal sports bike जो आप इंडिया में देखते हैं, कहीं बाहर भी देखते हो, that is the world superbike championship. अरे बाबा होगी, but is MotoGP vehicle the one driving? Is that a sports bike? I would say yes. Yes, it is a sport bike. It's motorsports. Obviously. It's a sports motorbike. Okay? Formula 1 car is a motor car. Yeah. Sports motor car. But it has 4 wheels. It has an engine. तो कार हुई. See, but it has 2 wheels. It has an engine. तो motorbike हुई. इससे हटके coming to the point. If it's 3 wheels and an engine, rickshaw हुई. Rickshaw GP. I don't know. So, see, there is a very big problem. Considering कि you're seeing Kush Maini right now currently in F2. You're seeing क्या नाम आया था आपने, Arvind Lindblad. Yeah, from Indian origin, Indian descent. I think. But yeah, मतलब पूर्वज है से Indian descent के. I don't know मैंने उसको सही से फ्रेम किया नहीं, but you understand.
there are no, and I mean no, Indian riders in what I MotoGP, said before. in Moto2, in Moto C. The last time an Indian rider raced in like close to MotoGP was in Moto3. Hmm. It was KY Ahmed, Hmm. and he was a wild card entry जब 2023 में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ही रेस हुई थी, भारत जीपी as they call it. So that connection is not felt by the Indian audience, and उनको कोई वही रीजन ही नहीं मिल रहा है. अच्छा एक चीज मैं तो आने मिस का. आउट करी गया फॉर्मूला 1 पे. इंडियंस तो रह चुके हैं. कार्तिकेय नारायण, Yeah. नारायणन आई थिंक, कार्तिकेय नारायण, वन And- ऑफ द ड्राइवर्स जो 2011-12 And में also भी race- विजय माल्या की अरे बाबा, the biggest reason. सहारा फोर्स टीम भाई, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट. D2S ड्राइव टू सर्वाइव जो है उसमें विजय माल्या की 3 स्प्लेंडेड सीजन्स में विजय माल्या की अपीयरेंसेस और कैमियोज जाके देखें. एंड द गाय ran away off to London, and but Force Sahara team was I mean it was growing, but it was in the ranks. Otmar was running the team और D2S पे वही लोग उन लोग का ही रहता था. People like Esteban Ocon and Sergio Perez, two famous drivers, ये लोग भी सहारा से ही निकले. तो anyways इंडिया का वहाँ पे काफी भी है. But that is a bath of the past, you know. हाँ अब बट अभी भी मेरे दो अभी तो भी है ना, see, I will अरविंद say- और कुछ है yeah, ना. yeah, उससे that is fine. But now what I would like to tell you is that is something which I did focus on my guide video. Dorna has said कि without a doubt India is the biggest market of bikes in the world. India is the biggest market of anything viral in Right. the world. ठीक है, and we know कि बाइक्स का यहाँ पे कितना स्कोप है. अगर आई मीन सी क्रिकेट को तो कोई ओवरटेक नहीं करने वाला, दैट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट. बट क्रिकेट के बाद आपको सी यू सी कबड्डी मोस्ट पॉपुलर, या फिर फुटबॉल टू सम एक्सटेंट. See, you're not अगर- understanding one thing. ये वो स्पोर्ट्स हैं जो कोई भी खेल सकता है. आई नो दैट इज समथिंग. बट चलो ठीक है, फॉर दैट मैटर हम कभी कभार जैसे इंडियन फैंस है, ऐसे एथलेटिक्स नहीं देखेंगे, कभी ओलंपिक्स आ जाता है, कभी वो आ जाता है, तो हम देखते हैं वही देखना है. हाइप का बात है पूरा, और Yeah. उसकी लेगेसी का. सो अगर हम्म. मोटो जीपी कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट उस लेवल पे पहुंच गया, दे विल फॉर श्योर राइवल F1 इन द फ्यूचर. एंड They आई will- they will. एंड दे हैव स्टार्टेड प्लान्स. Right now in F1 I don't see any contender global उसमें, क्योंकि F1 is the biggest of them all, right? आई विल I mean अगले 10 साल just a simple question, okay? Checkered flags जो होते हैं या फिर जो पैडक्स में आते हैं आपके सेलिब्रिटीज MotoGP में आते हैं, वेल नोन. सी आई spotlight टेल यू, होता है. ऑस्ट्रेलिया में होती है रेस, एंड क्रिस हेम्सवर्थ इज अ बिग फैन ऑफ मोटरस्पोर्ट फैन है वो. ही इज अ मोटरस्पोर्ट फैन. सो वो चेकर्ड बट फ्लैग सिर्फ F1 में आपको आई कैन नेम एटलीस्ट आई थिंक 20. आई कैन टेल यू Jordan Ramsey, Master Chef, Ana de Armas, Spanish actress. Then we have Tom Holland. Okay, we have see your Apate wala जिसने song गाया था. I can't remember her name. Rose. Okay, so all of them, all these celebrities come around the paddock, support करते हैं teams को, different teams को. Scarlett Johansson. Then you have your Brad Pitt की जो Angelina Jolie. So anyways, you get it. F1 has a legacy. आई एम नॉट सेइंग ब्रांड में तो कोई है नहीं राइवल फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स एज वेल. आई एम सेइंग कि अगर जिस स्कोप पे करना चाह रहे हैं डॉर्ना, एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट, टू एट द फैक्ट कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में रेसेस 2027 में आई गेस फिर से स्टार्ट होंगी, पर इट इज गोइंग अंडर द रेनोवेशन, और ऑडियंस देखने जाती होगा. जाती है. आई मीन लोग यहाँ पे जेसीबी खुदा ही देख लेते हैं, तो एक स्पोर्ट्स बाइक क्यों नहीं देखेंगे? Obvious, सुपर बाइक yeah. एक्चुअली. सुपर बाइक इज द राइट वर्ड. सुपर बाइक इज द राइट स्पोर्ट्स ही होती है पर हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस. So, there is that reason. ठीक है. Another thing is कि this is one thing where I'll, you know, मैं तारीफ करूँगा गवर्नमेंट की, that they are focusing on Indian riders and drivers for because they hold the Indian racing festival. 25 में भी होता है. गवर्नमेंट नहीं रखती है. I mean जो भी रखता है, I don't know who the organization is, but I am genuinely happy कि they are trying to at least do something जिससे हमारे country के riders, drivers जो emerging है, they at least get to F3 या Moto3 या other sports. So
दैट इज अ गुड थिंग. और ऑब्वियसली एड टू द फैक्ट कि बाइक्स का जो है इंटरेस्ट है वो उस लेवल पे पहुंच गया. सो मोटो जीपी, बट यू विल हैव टू एग्री कि F1 के बाद आई वुड से मोटो जीपी इज द बिगेस्ट मोटर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन. NASCAR से तो बड़ा ही है. NASCAर का मुझे एक ड्राइवर नहीं मालूम है. अमेरिका में NASCAR is more popular by the way. अमेरिका में MotoGP is not popular. So Again, as I said, Moto- 95%, 90% लोग cars चलाते हैं. Bike बहुत bike is when you are Bike? buying a bike for cruising through the countryside. बाइक्स की पॉपुलरिटी यू सी इन यूरोप नेशन जहाँ पे इटली Sanchez या जो अपनी बाइक और एशियन नेशन जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ से भी आपको हाँ. बहुत राइडर्स मिलेंगे. सो यहाँ पे बहुत सॉरी फॉर दैट इंटरेस्ट है. सो या आई गेस दैट इज इट. हमने सारे कवर कर लिए टॉपिक्स. फिर क्या कंक्लूजन निकला? I- F1 No, no, dominates ये किसी ने as नहीं कहा. always. दैट इज अप टू द व्यूअर्स. आपको क्या लगता है dominates as किसने always. which sport is better? I will say both sports. नहीं, the debate is not about which sport is better. Both sports are good for their own reasons. Both sports are But- bad for their own reason. Based on the pointers that you discussed, F1 dominates. नहीं, होस्ट साहब, आपने जो 6 पॉइंटर लिए हैं उसमें से 4 तो मेरा F1 ही जीत गया है. बिकॉज मीडिया में, इंडियन फ्यूचर में, नहीं, इंडियन फ्यूचर में कहाँ से? अच्छा, मीडिया में, या परफॉर्मेंस वाइज, नहीं, परफॉर्मेंस, टेक वाइज. अरे भाई ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज, इनोवेशन वाइज, नहीं, उसमें भी और कौन से पॉइंटर्स थे? उसमें भी मोटो जीपी. आई वुड इनोवेशन, आर यू Yeah. किडिंग मी? नहीं. सो इनोवेशन, Formula 1, इनोवेशन वाज इंक्लूडेड इन टेक्नोलॉजी. यार टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सी मैं बायस. हिस्ट्री एंड लेगेसी. लेगेसी में आपने कहा था ना, दिस इज टफ टू डिसाइड. F1 हिस्ट्री यार हिस्ट्री एंड लेगेसी. तुम कितने ड्राइवर्स के नाम बता सकते हो मोटो जीपी में रॉसी को छोड़? राइडर्स. राइडर्स बोला मैंने. आई कैन नेम द होल लॉट. यू आर अ फैन, कैन यू नेम? गूगल मत करना, ऑनेस्टली बता देना. So F1 definitely dominates, but you decide. Comment section में हमको बताइए which you think is the dominant sport. ये नहीं बोला better, dominant sport. स्पोर्ट, क्योंकि बोथ स्पोर्ट्स के लिए अब हमारे इनमें से एक कोई होगा जो बोलेगा दोनों बकवास है और क्रिकेट बेस्ट है. सो सी आई विल से दोनों स्पोर्ट्स के लिए रिस्पेक्ट है. ये जो बैंडर चलता है ये चलता रहेगा, चलता आ रहा है और चलता रहेगा, और उसमें अपने मजा भी आता है बिल्कुल. बट देयर इज रिस्पेक्ट. इंडिया पाकिस्तान. यार नहीं यार. सो थैंक यू सोध्या फॉर coming to the debate. I was really excited and I'm happy that you came, and I That's hope what she said. I'm happy कि ये वीडियो हम कर पाए. That was plans a lot. So and thank you to the audience. अगर आपने end तक देखा है, any suggestions which you have, you can बिल्कुल comment कीजिए. We love when fans comment. Hey, don't. And subscribe to the channel for more motorsports content and other cricket content as well. And come on in. Right there. F1 पे focus करो. मत Like this करो. video, share this with your friends, and we'll see you in another video. Do, Bye bye, guys. Max Verstappen.